welcome back to my YouTube channel with another video on the topic functions of HRM, Human Resource Management. So if you are new to my channel, don't forget to subscribe it and press the bell icon to get the notification of every new video. So without wasting our precious time, let's heading towards the functions of HRM. So basically there are two types of functions, that is managerial function and other is operative function. Okay, these are the two main functions of HRM, which is further subcategorized into many categories. So firstly, let me tell you the meaning of managerial functions and operative functions. Managerial functions are the functions which are to be performed to manage people at the job, which is not an easy task. मैनेजीरियल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जौन से एक जॉब में जितने भी एम्प्लॉयज़ हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई टॉप लेवल का एम्प्लॉय हो, चाहे वो लोअर लेवल का एम्प्लॉय हो, सभी एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना HRM का मैनेजीरियल फंक्शन है. दैट्स इट. And the other function is operative function, which is concerned with the task related to personnel department. Personnel department means the part of the organization concerned with the welfare of employees. वो organization का part जौन सा employees की welfare को लेकर concerned होता है, like employment, development, compensation, maintenance of personnel of organization. Personnel means कर्मचारी of the organization. Okay, so let me write here the simple meaning. The managerial function is performed to manage the people at the job. Whereas operative functions are those functions which are related to do the task of personnel department. ये सिंपल मीनिंग मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जिसके साथ आपको थोड़ा सा रिमाइंडर सा रहेगा कि हाँ इसका मतलब ये है और ऑपरेटिव फंक्शन का मतलब ये है. Okay, let's heading towards to the managerial functions. There are total 6 managerial functions. सबसे पहला managerial function है planning. Planning means a future course. Future course आप पूछोगे कि future course क्या होता है. Simply, future course means deciding in advance what to do, when to do, who is to do, how to do. Planning means bridges the gap between where we are and where we want to go. In other words, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेन गोल होता है जिसे अचीव करने के लिए सबसे पहला पॉइंट ही प्लानिंग होता है. प्लानिंग करना कि वो उस गोल को कैसे अचीव किया जाए. अगर कोई बीच में कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम. इन फैक्ट प्लानिंग तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी की जाती है. अगर हमने किसी चीज़ को अचीव करना है तो ऑब्वियस है हम पहले प्लान करते हैं. सो प्लानिंग इज़ द फर्स्ट मैनेजीरियल फंक्शन ऑफ HRM. ये प्लानिंग की जाती है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए. कौन करता है? HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ प्लानिंग इज डिसाइडिंग in advance
So the next function is organizing. ऑर्गेनाइजिंग आप खुद अपनी नॉर्मल लाइफ में भी करते हो, लाइक आप अपने कोई भी स्टफ़ को ऑर्गेनाइज कर रखते हो, जैसे वैसे ही HRM भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, लाइक कोई भी टास्क को लेकर कि उस टास्क में कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आता है। सो HRM का ये भी एक फंक्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर टास्क को ऑर्गेनाइज करना। Moreover, the right organization structure is the foundation of effective management, because without it is the best performance in all other areas will be ineffective. अगर हमने ऑर्गेनाइजिंग ही नहीं अच्छे तरीके से की तो बाकी जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इनअफेक्टिव हो गए। सो अगर आपको एक सेंटेंस में आपको मैं ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बताऊं तो वो होता है टू मेक अरेंजमेंट फॉर समथिंग टू हैपन। So next function is directing. Directing means to giving orders, instructions, providing the dynamic leadership, leading executives, guiding, supervising and ordering. Directing means डायरेक्ट करना अपने एम्प्लॉयज़ को, एग्जीक्यूटिव्स को, उन्हें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ऑर्डर्स देना, उन्हें सुपरवाइज भी करना, ये भी डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है। सो टू डू द वर्क एज़ पर रिक्वायरमेंट, ऑर्डर्स देना, ये सिंपल मीनिंग है डायरेक्टिंग का, आपको आई थिंक क्लियर होगा। सो मैं आपको डायरेक्टिंग के 3 मेन वर्ड्स बता देती हूँ आपको, जिससे याद रहेगा कि डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है। फर्स्ट इज गिविंग और इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इन 3 वर्ड से आपको इजीली याद आ जाएगा कि डायरेक्टिंग का क्या मतलब है, डायरेक्टिंग के को कैसे हमने ब्रीफ में लिखना है। सो नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब सिंपल चेक करना, वेरीफाई करना, to ensure that everything is occur according to the plan. Moreover, it is the process that measures current performance and guide it towards some predetermined goals. Simply HRM करंट परफॉर्मेंस को मेजर करती है और देखती है कि वो अकॉर्डिंग टू गोल्स, जौन से हमारे गोल्स हमने प्रीडिटरमाइंड फिक्स किए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही। So measure the current performance. Next is coordination. Coordination means orderly arrangement of group efforts to provide unity of action in pursuit of a common purpose. Simply, unity of it is the integration of group efforts in the enterprise towards the accomplishment of common objective. कोऑर्डिनेशन, जब तक किसी भी काम में कोऑर्डिनेशन नहीं होती तब तक कोई भी परफॉर्मेंस स्मूथनेस से नहीं चल सकती, मतलब कि कोई भी गोल अचीव इजीली नहीं हो सकता।
कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब ग्रुप्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना। सो कोऑर्डिनेशन एक यूनिटी ऑफ एक्शन है टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। Staffing means human resource management not only keep the staff active, but it manages to obtain the best results by developing the abilities of the staff. मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिर्फ मैनेजमेंट करके स्टाफ को एक्टिव ही नहीं रखता, बल्कि उनकी एबिलिटीज़ को डेवलप भी करता है, ट्रांसफ़र करके, प्रमोशन करके, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके। इन सब चीज़ों से एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ में डेवलपमेंट आती है और ये एक मैनेजरियल फंक्शन है HRM का। सो स्टाफिंग के पॉइंट को याद रखने के लिए आपको क्या याद रखना होगा? डेवलपिंग द एबिलिटी ऑफ द स्टाफ। Okay, let's move on to the second main function of HRM, that is operative function. As I told you before, that operating function is concerned with the task related to the personnel. So operative function is further subcategorized into 5 categories. I will tell you one by one. So first is procurement function. So what do you mean by procurement? Procurement is the act of obtaining manpower. So सबसे पहले फंक्शन क्या होता है HRM का? मैन पावर मतलब कि एम्प्लॉयज़ या कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करना। एक ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, बट ऐसे ही नहीं कि मैन पावर की आपको एप्लीकेशंस आई हैं, आपको रेज़्यूमे आए हैं और आप उनको जॉब प्रोवाइड कर दीजिए, ऐसे नहीं होता। सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, फिर जॉब की एनालिसिस होती है,